السلام علیکم ناظرین، 4 خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، where life comes alive۔ ہنگامی صورتحال میں سیاست سے بالا تر ہو کر کام کریں۔ سیلاب کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے محکمہ جات تال میل سے کام کریں، مسائل کا مستقل حل نکالیں۔ کاماریڈی میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا وزیر اعلیٰ نے کیا دورہ۔ GST اصلاحات سے ریاستوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ ہندوستانی حکومت فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت کرے، ریاست اور حیدرآباد کے امن کے لیے میلاد جلوس کی تاریخ میں تبدیلی، صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی پریس کانفرنس۔ عطاپور پولیس اسٹیشن کے حدود عرش محل میں نوجوان کا قتل، حملہ کی تلاش جاری۔ اور ڈرگس کی خرید و فروخت کا ریکٹ بے نقاب، 2 پیڈلرز اور 7 صارفین گرفتار، 15 لاکھ روپے مالیتی MDMA ضبط۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ
रेवंत रेड्डी ने कहा कि सैलाब से होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए महकमे जात के दरमियान तालमेल होना चाहिए। कामारेड्डी के दौरे के बाद कामारेड्डी के कलेक्ट्रेट में जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिला में कितना नुकसान हुआ है, कितने फंड्स की जरूरत है, इसकी मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने कहा कि मरम्मत तामीरात आर्जी तौर पर नहीं बल्कि इसका मुस्तकिल हल निकालें। वजीर आला ने कहा कि तालमेल की कमी से यूरिया की सरबराही में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मसाइल जब भी पैदा होते हैं सियासत से बालातर होकर काम करें। उन्होंने कहा कि 15 दिन के बाद फिर एक बार जायजा इजलास लेंगे। वजीर आला के हमराह काबीनी वज़रा और आला ओहदेदार मौजूद थे। ఇంటర్నల్ కోఆర్డినేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఎనీథింగ్. మీరు సమస్యను అడ్రస్ చేయడం కంటే కూడా సమన్వయం చేసుకోవడం, కొన్నిసార్లు రెండు శాఖల మధ్యలో సమన్వయం జరిగితే ఆ సమస్య తొందరగా పరిష్కారం అవుతుంది. లేకపోతే పంచాయతీ రాజ్ ఆయన వచ్చి రోడ్ వేసిపోతాడు, మన వాటర్ వర్క్స్ ఆయన వచ్చి కృపాకర్ వచ్చేసి తవ్వేసి పైప్ లైన్ వేసిపోతాడు. వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ పైప్ లైన్ వేసినాక తర్వాత రోడ్ వేస్తే ఏ సమస్య ఉండదు. ఇట్లాంటి సమస్యల్ని ఎక్కడైతే ఉందో ఎరువులకు సంబంధించి కూడా ఏం పంచుతారు, ఎట్లా పంచుతారు, అక్కడ ఏముంది, అక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా, కొంత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడం, లేకపోతే డీసెంట్రలైజ్ చేయడం. ఇప్పుడు 30-40 వేల జనాభా ఉండే మండలానికి 2 షాపులు పెట్టిండ్రు అనుకోండి, దాదాపుగా 10,000 మంది రైతులు ఒకటే రోజు వచ్చి కూర్చుంటే ప్రాబ్లం అవుద్ది. వాళ్ళకి ముందే టోకెన్లు ఇచ్చి నీది 6 తారీఖు, నువ్వు 7 తారీఖు, నువ్వు 8 తారీఖు స్టాక్ వస్తే దీని ప్రకారం తీసుకోండి అని అగ్రికల్చర్ ఏఈలు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్ళి గ్రామాలను పిలిచి ఇప్పుడు రైతు వేదికలు ఉన్నాయి. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को बारिश और सैलाब से मुतासरा जिला कामारेड्डी का दौरा किया। वजीर आला ने लिंगमपेट के पास पुल को हुए नुकसान का भी मुशाहिदा किया। वजीर आला सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात की। वजीर आला रेवंत रेड्डी के हमराह हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, रियासती वज़रा सीता अक्का, पी श्रीनिवास रेड्डी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने ओहदेदारों से बारिश और सैलाब से हुए नुकसानात की तफसीलात भी हासिल की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का वज़रा के साथ फ़ज़ाई मुआयना भी किया। बाद में मुकामी अवाम से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तमाम महकमे जात की मौसर राब्ते के साथ काम करने की वजह से जानी नुकसानात को टाला जा सका। उन्होंने बताया कि कामारेड्डी के तमाम अवामी नुमाइंदे अवाम के दरमियान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सैलाब के फौरी बाद उन्होंने मुकामी अवामी नुमाइंदों से राब्ता करते हुए उन्हें मैदान पर रहने की हिदायत दी थी। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत के जीएसटी इस्लाहात पर सवालात उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से रियासतों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी और रियासतों का नुकसान होगा। सदर मजलिस ने कहा कि कोरियर को 5% में क्यों नहीं लाया गया। उन्होंने कहा कि रियासतों को सेस फराहम किया जाना चाहिए। जितने स्टेट्स हैं उनको कम से कम उनके टैक्स रिसीव में से 8 से 10,000 करोड़ कम हो जाएंगे, तो इनका कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या होगा, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। और फिर दूसरी अहम बात यह है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, जो आउटसाइड डिविजिबल पूल बोलते हैं, वो सेस एंड सरचार्जेस हैं, जो दोनों मिलाकर 5,23,000 करोड़ फाइनेंशियल 24-25 में था। और नॉन टैक्स रेवेन्यू डिविडेंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड्स पीएसयू से आता है, आरबीआई से सरप्लसेस, सर्विस चार्जेस, वो आ जाता है 5,45,00,000 करोड़। तो हमारा मानना ये है कि स्टेट्स को तो खाली ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू शेयर मिलता है, सेंटर का जो उनके सेंटर जो मिल रहा है सेस एंड सरचार्ज में, वो तो इरोड करता है डिविजिबल पूल के साइज़ को, और सेंटर रिकॉर्ड सम लेता है सेसेस के ऊपर, फ्यूल, जीएसटी, कंपनसेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मगर ये डिवाइजेबल पूल से बाहर है,
اسٹیٹس کا تو حصہ اس میں نہیں ہے نا, تو اسٹیٹس کا نقصان ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم ابھی اپنا ایکسپرٹ سے بات کیے, ان کا بولنا یہ ہے کہ جو 21 سپٹمبر سے 18% ہوگا اس کا ریفنڈ پروویژن کیا ہوگا. کوئی ان کو انپٹ ٹیکس کریڈٹ میں پروویژن نہیں ہے ریفنڈ کا. اچھا, سروسز سیکٹر میں آپ 18 سے 5% کیے, مگر کوریئر آج بھی 18% ہے. اب کوریئر تو عام آدمی استعمال کرتا ہے نا, تو اس کو آپ 5% میں کیوں نہیں لے کے آئے. ایسینشیل سروسز ہیں. اور دوسرا ایجوکیشن کو آپ نے کم کیا, مگر یہ بتائیے جو سروس پرووائڈ ایجوکیشن میں, مثال کے طور پہ ایگزامپل میں, اگر کوئی بس سروس دے رہا ہے لکھ جانے کے لیے, اس کو آپ 18% لا رہے ہیں. فزیکل ایجوکیشن ہے, جو کمپنی ایک فزیکل ایجوکیشن بنا کر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بھی جاتی, اس کو 18% لگا رہے ہیں آپ. پھر یہ سب چیزیں ہیں جس سے ہم کو فکر ہے کہ اس سے اسٹیٹس کا اور خاص طور سے اسٹیٹس کو بڑی تکلیف ہونے والی ہے. بیرسٹر اسد الدین اویسی نے غزہ میں ہو رہی اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کی. انہوں نے کہا کہ ہندوستانی حکومت کو فلسطین کی نسل کشی کی مذمت کرنی چاہیے. The minimum, the least that the Modi government can do is that they should condemn this genocide of Palestinians in Gaza, and we are forgetting West Bank. 40,000 Palestinians have been uprooted from their homes. These Zionist supporters say, no, 7th October happened. What about West Bank then? How is it that 40,000 Palestinians have been uprooted from West Bank? Every day their houses are being removed, demolished over there. Why can't the Modi government, if they really stand with Global South, they should condemn this genocide being perpetrated by this fellow called Benjamin Netanyahu, who's a threat to the world peace. It is a man-made famine in Gaza. People who go to collect food have been shot dead. And the whole world is seeing, everyone is seeing, but no one has the courage to put an end to this genocide. Me and you have not seen the Holocaust done by Hitler to Jews. But right now we are seeing, which is being live telecasted in our homes, whether through TV channels, through our phones, through various social media websites. But no one is stopping the genocide. I demand from my government that you must condemn this genocide. You must put an end to this genocide and say in clear-cut terms. چین کے ساتھ تعلقات پر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سوال کیا کہ جتنے پیٹرولنگ پوائنٹس پر ہم پیٹرولنگ نہیں کر رہے تھے, کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ چین ایک ہندوستان پالیسی کو نہیں مانتا ہے, جبکہ ہم ایک چین پالیسی کو مان رہے ہیں. بیرسٹر اویسی نے امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے ٹیرف کے لزوم اور ہندوستان کے موقف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. ایک بات ہم کو بتائیے, جتنے پیٹرولنگ پوائنٹس پر ہم پیٹرولنگ نہیں کر سک رہے تھے, 65 میں سے 25 پر نہیں کر سک رہے تھے, ہم کر سک رہے کیا پیٹرولنگ وہاں پر؟ نہیں, سن تو لیجئے, یہ سرکار سے ہم پوچھ رہے ہیں. جو ٹیریٹری پر, ہماری ٹیریٹری پہ جو بفر زون بنا دیا گیا, ہم جا سکتے کیا وہاں پر؟ نہیں جا سکتے. تیسرا, جو ٹریڈ سرپلس ہے چائنا کے ساتھ, وہ بڑھتا ہی جائے گا یا کم ہوگا؟ یہ سرکار بتا دے ہم کو. چائنا ون انڈیا پالیسی کو نہیں مانتا ہے, ہم ون چائنا پالیسی کو مان رہے ہیں. کیسا ہو رہا ہے بتا رہیے؟ آج بھی وہ کہتے ہیں, کئی جگہ پر بولتے کیا وہ ون انڈیا پالیسی کو مانتا ہے؟ ہم سرکار سے جواب پوچھ رہے ہیں. یہ جواب دینا چاہیے سرکار کو. آپ کو کبھی بھی اس بات کو منظور نہیں کریں گے کہ ہم کو پاکستان کے ساتھ ہائفنیٹ کر دیا جائے, اور ٹرمپ برابر بولے جا رہے ہیں. میں تو کس نے کیا تھا اب کی بار ٹرمپ سرکار؟ میں کیا تھا. آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں نا میڈیا میں, آپ لوگ اتنا کیوں ڈرتے؟ کس نے کیا تھا؟ ہاتھ پکڑ کے 2 عاشق چل رہے ہیں احمد آباد کے اسٹیڈیم میں, بہاؤ میرا محبوب آیا ہے ٹرمپ. کس نے کیا تھا امریکہ جا کر؟ اب پوچھئے نا کیا ہو رہا ہے. فیبروری 2025 میں جا کر آپ ملے, بات کیے تھے. اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ مودی کی موجودگی میں, ہمارے پردھان منتری کی موجودگی میں, ایک ودیشی دیش کا صدر کہہ رہا ہے کہ یہ ہم سے ہتھیار خریدیں گے, ہم سے یہ خریدیں گے.
जब ही हमको रोकना था। आप उठाकर मेरी स्पीच देखो आप, अगर हम 2017-18 में ईरान का ऑयल लेना बंद नहीं करते तो आज ये स्थिति नहीं आती थी। मीलाद जुलूस की तारीख में तब्दीली से मुताल्लिक बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद और तेलंगाना के अमन के लिए तारीख में तब्दीली की गई है। सदर मजलिस का कहना था कि अमन को मजबूत करने के लिए यह फैसला किया गया है। 14 सितंबर को मीलाद जुलूस कामयाबी के साथ निकाला जाएगा। हैदराबाद के अमन के लिए, तेलंगाना के अमन के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हैदराबाद और तेलंगाना के तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के उलमाओं का, ऑर्गेनाइजेशंस का, कि उन्होंने सब मिलकर ये फ़ैसला लिया और मीलाद जुलूस पूरे तेलंगाना में 14 सितंबर के दिन, इतवार के दिन निकाला जाएगा कामयाबी के साथ। और हमारा मानना यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद जो है वो तो दुनिया में होता आया है और सुबह क़यामत तक होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक अमन की खातिर और अमन को मजबूत करने के लिए एक फ़ैसला लिया गया है। तो हम यही चाहते हैं कि बस अमन रहे और हर कोई अपने अपने त्यौहार को और ख़ास तौर से ईद मिलादुन नबी को, जश्न रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पूरे खुशू और खुजू के साथ और पूरी रूहानियत के साथ उसको हम मनाएंगे और मनाते जाएंगे। बीआरएस पार्टी के लीडर देवी प्रसाद ने कहा कि वो तेलंगाना में महरूस होकर रह गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला दौरे के लिए जहां भी जाते हैं बीआरएस कायदीन को नजरबंद किया जा रहा है। कामारेड्डी के दौरे के मौके पर बीआरएस कायदीन को हाउस अरेस्ट किया गया, उनको फौरन रिहा करने का मुतालबा किया। पुलिस के बगैर उस्मानिया यूनिवर्सिटी आने का दावा करने वाले आज कामारेड्डी में पुलिस के जरिए बीआरएस कायदीन को क्यों गिरफ्तार किया गया? सोशल मीडिया की खबरों को वजीर आला बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वजीर आला तेलुगु देशम की तारीफ कर रहे हैं। बीआरएस तमाम हरबों का सामना करके अवाम के साथ खड़ी है। पार्टी लाइन पार करने पर उन्होंने कहा कि कविता को मुअत्तल किया गया है। तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव ने कहा कि त्यौहार के तोहफे के तौर पर जीएसटी में तब्दीली लाई गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वन नेशन वन लॉ पर भी अमल होगा। उन्होंने कहा कि महासिल निज़ाम को सहूलत बख्श बनाया गया है। मोदी ने मुतवस्सित तबके की आवाम को जरूरी अशिया पर 5% टैक्स को कम किया है। रामचंद्र राव ने कहा कि रियासत भर में बीजेपी कारकुन मोदी की तस्वीर को दूध से नहलाएंगे। उन्होंने कहा कि गणेश जुलूस में अमित शाह शिरकत करेंगे। अमेरिका की तारीफ से कीमतों में इजाफा हो जाएगा, लेकिन मोदी ने जीएसटी को कम कर दिया। रामचंद्र राव ने कहा कि रियासत को जरूरी यूरिया मरकजी हुकूमत सरबराह कर रही है। महबूबनगर में 800 थैले कांग्रेस कायदीन उठाकर फरार हो गए। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हुकूमत ने आबकारी पॉलिसी लाने के लिए बुलंद बांग दावे किए थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लेकिन आबकारी पॉलिसी के जरिए शराब पर पाबंदी लगाने का ऐलान करेंगे, लेकिन ये नौजवानों को शराब का आदी बनाने वाली पॉलिसी है। हम नीरा कैफे खोलने का मुतालबा कर रहे हैं और हर देहात में बीर की दुकान खोल रहे हैं। बैलेट शॉप को बर्खास्त करने का ऐलान करके इसमें इजाफा कर रहे हैं। आमदनी में इजाफे के नाम पर शराब की दुकानों को मंजूरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तहरीक में कविता के साथ सबने मिलकर काम किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में नंबर 1 मुकाम पर केसीआर रहेंगे। कविता के इल्जामात बेबुनियाद हैं। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की रहनुमाई में नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खान ने महकमे आबरसानी के अहदेदारों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने डीओपी विनोद भार्गव से उनके दफ्तर वाक़े खैरताबाद में पीने के पानी की पाइपलाइन की मंजूरी के मौजू पर बात की, जो आगापुरा में बिछाई जाएगी। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने राशन ऑफिस वाक़े खैरताबाद में डीएसओ श्रीनिवास से मुलाकात की। उन्होंने मख्ता स्लम के रहने वालों के मसाइल के बारे में बात की, जहां डीएसओ की जानिब से राशन कार्ड्स न देने की वजह से मकीनों को मसाइल पेश आ रहे हैं।
जिस पर मिर्जा अहमद बेग ने दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया, जिस पर डीएसओ 63 राशन कार्ड्स को मंजूरी देने पर मजबूर हो गए। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन, मजलिस के सरगर्म कारकुनों के अलावा मुकामी अफराद भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने 6 सितंबर को गणेश मूर्तियों के निमज्जन और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकारीब के सिलसिले में आला पुलिस ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। कॉन्फ्रेंस में एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर विक्रम सिंह मान, एडिशनल सीपी क्राइम विश्व प्रसाद और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने अपने खिताब में कहा कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न और गणेश की मूर्तियों के दरमियान आमना सामना नहीं होना चाहिए। पुलिस को 4 तारीख की रात से तमाम पुलिस स्टेशन हदूद में मौसर इंतजामात करने चाहिए। कमिश्नर पुलिस ने यह भी बताया कि जुमा को पुलिस का वसी तर बंदोबस्त किया जाए। कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी 6 सितंबर को मौजमजाही मार्केट आ रहे हैं। इस सिलसिले में भी इंतजामात किए जाएं। बल्दिया के ओहदेदारों पर जोर दिया गया है कि जुलूस की गुजरगाहों पर इंतजामात को यकीनी बनाएं। हैदराबाद में गणेश त्यौहार के सिलसिले में पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है। सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों वीएसटी, अंबेडकर नगर चौराहा, चिक्कड़पल्ली, बागलिंगम, अंबेडकर कॉलेज में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। अवाम में अमन कानून का एतमाद बहाल करने के लिए फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। आसिफाबाद जिले के जैनूर मंडल में वाक़े स्कूल में टीचर हालत नशा में पाया गया। बताया जाता है कि नशे की हालत में टीचर क्लासरूम पहुंच गया और वहीं पर सो गया। मासूम बच्चे टीचर्स की इस हरकत को देखते रहे। जब इंतजामिया को इसका पता चला तो फौरी कार्रवाई करते हुए टीचर को मुअत्तल कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर रमा देवी को भी इसकी तल्ला दी गई थी। अतापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े अर्श महल में 22 साला नौजवान का कत्ल कर दिया गया है। मकतूल की शनाख्त किशनबाग के साकिन रॉयल सैफ की हैसियत से की गई। बताया जाता है कि सैफ पर 2 अफराद ने मोहलिक हथियारों से हमला कर दिया। जख्मी हालत में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इतला मिलने पर पुलिस मुकामे वाक़या पहुंची। बीएनएस की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मोहम्मद सैफुद्दीन और फैजान साकिन दाल मंडी कॉलोनी किशनबाग और मोहम्मद जबीह साकिन किशनबाग को तहवील में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक कातिल और मकतूल में दुश्मनी थी। कातिल ने एक वक्त मुलजिम नंबर 1 की मां के साथ गाली गलौज की थी, जिस पर वो बरहम था और अपने साथी मुलजिम नंबर 2 को लेकर मनसूबाबंद तरीके से उसका कत्ल कर दिया। ईस्ट जोन टास्क फोर्स और चिलकलगुड़ा पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर्स और 7 सारिफीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ग्राइंड रैप के जरिए MDMA खरीदी जा रही थी। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स और चिलकलगुड़ा पुलिस ने ड्रग पेडलर्स रमाकांत और प्रसाद के अलावा सारिफीन विनय कुमार, समी, के माशा, वंशी, राजू नायक, शेख समीर और सत्या सुरेश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान के पास से 100 ग्राम MDMA, 10 मोबाइल फोन्स जब्त किए गए हैं। जब्त की गई अशिया की कीमत 15 लाख रुपए बताई गई है। टोली चौकी पुलिस ने मकान में काम करने वाली खातून को गिरफ्तार करके 3 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात बरामद कर लिए। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने एक शिकायत पर कार्रवाई करके निजाम कॉलोनी टोली चौकी की रहने वाली 36 साला सबीहा बेगम को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मीर शफी अली खां के मकान में वो काम करती थी। उसने अलमारी से करीब 3 तोले के तलाई जेवरात का सरका किया। पुलिस की पूछताछ पर मुलजिमा ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और बताया कि वो बच्चों की फीस और दूसरे अखराजात अदा करने के लिए तलाई जेवरात चुराए थे।
पुलिस ने केस दर्ज करके मसरूका तलाई जेवरात को बरामद कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। अगस्त 20 तारीख के दिन एक चोरी का वारदात पेश आया है। शफी अली खान निज़ाम कॉलोनी के रहने वाले हैं। उनके घर में 30 तोले का सोना चोरी हुआ बोल के उन्होंने आके टोली चौकी पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दिए थे। ओम ज्वेलर्स के पास एक औरत सबिहा नामकारी उन्होंने आके वहाँ पे चोरी का माल बेच रही बोल के अपनी इन्फॉर्मेशन आया। फौरी डीए बालराज अपने टीम के साथ वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद वो सबिहा बेगम नामकारी एक औरत को गिरफ़्तार कर लिया। उसको तहकीकात करिए तो उसने अपने चोरी का जुर्म कबूल किया है और फर्दर 30 तोले के बारे में पूछे तो उसने क्या किया, थोड़े पैसे और थोड़ा सोने का माल लेके जाके वहाँ पे मन्नापुरम गोल्ड में भी थोड़ा गिरी रख दिए थे। उसको भी हमारे डीए बालराज ने जाके सीज़ कर लिया है, बरामद कर लिया है। इसका क्या है, ये सबिहा बेगम की एक लड़की को इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट आ गया है। वो सीट के पैसे नहीं भर सके, उसके वजह से इसने ये चोरी का काम किया है। ये सबिहा बेगम ये अपने शफी अली खान साहब के घर पे 20 साल से काम कर रही है। 20 साल से कभी भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया है, ये पहली बार है। काली खबर में वाक़े भारत पेट्रोल पंप की कैबिन में सांप के पाए जाने से सनसनी देखी गई। पंप इंतजामिया ने फौरी मीर चौक पुलिस को इसकी इत्तला दी। सांप पकड़ने वाली टीम इसे अपने साथ ले गई। मुकामी अवाम ने बताया कि उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के खराज के बाद मूसा नदी के सांप किनारे पर आ गए हैं और अक्सर नदी से लगे मकानात और दूसरे मकामात पर दाखिल हो रहे हैं। अवाम में एक तरह की तशवीश भी देखी जा रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हंगामी सूरत हाल में सियासत से बालातर होकर काम करें,
سیلاب کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے محکمہ جات تال میل سے کام کریں، مسائل کا مستقل حل نکالیں۔ کاماریڈی میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کیا دورہ۔ جی ایس ٹی اصلاحات سے ریاستوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، ہندوستانی حکومت فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت کرے۔ ریاست اور حیدرآباد کے امن کے لیے میلاد جلوس کی تاریخ میں تبدیلی، صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی پریس کانفرنس۔ عطاپور پولیس اسٹیشن کے حدود عرش محل میں نوجوان کا قتل، حملہ آوروں کی تلاش جاری۔ اور ڈرگس کی خرید و فروخت کا ریکٹ بے نقاب، 2 پیڈلرز اور 7 صارفین گرفتار، 15 لاکھ روپے مالیتی MDMA ضبط۔ اور ناظرین کے ساتھ 4 TV خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 TV نیوز۔ خدا حافظ۔